Namaskar. I welcome you all in this session of induction meeting certificate in craft and design pottery. दोस्तों, इस शिल्प एवं डिज़ाइन कुंभकारी के सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग अपनी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप कृपया नोट कर लें जो टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर है जिस पे कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या इसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं इस चर्चा में। वो आप फ़ोन नंबर और फैक्स नंबर आप नोट कर लें। फ़ोन नंबर है 011-2953-2844। दूसरा नंबर है 2953-2845 और तीसरा नंबर है 2953-6131। ये फ़ोन नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। फैक्स नंबर है 011-2953-6134। तो आप अपने प्रश्न फैक्स करके भी पूछ सकते हैं। और एक टोल फ्री नंबर भी है जिसे आप नोट कर लें 1800-112-345। तो अपनी चर्चा को जारी रखते हुए मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि इवैल्यूएशन स्कीम इस पाठ्यक्रम का क्या है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोग्राम. So how we evaluate the learners in this craft and design pottery program. So if you see on the slide, it is given we have 4 courses. तो जो 4 कोर्स हैं इसमें एक हमारा थ्योरी का कोर्स है वर्ल्ड ऑफ क्ले, जिसमें कि सबसे पहले कॉल ले लेते हैं। हाँ, बताइए शिलोंग से। Hello. हाँ, हेलो, बताइए। Good afternoon, all of you. नमस्कार। I would like to inform you that study center has already been identified at Mendipathar, that is in Garo Hills, West Garo Hills, and the resource persons has also been identified, but we have not received any guideline for courses for this program. Thank you. Over. Thank you, Dr. Lalu. Thank you so much for identifying a study center. We'll definitely send you all the details of the program, and I'm sure that it will be a very successful program for the state of Meghalaya. Thank you very much. Dr. Ajit Kumar? Yeah, what I will like to say that if you can send through mail the address, name and address of the study center, it will be helpful to us, and we will send you all the relevant material to the study center also and to you also. Thank you. So friends, as I was discussing the evaluation scheme, we will come again on this, that we have 4 courses. One is on theory course, that is World of Clay, and in this theory course, this is 6th credit program. So you will have term end examination that will be conducted 2 times in a year. So in June and December our exams are conducted. You have to appear in this theory course, and that will be 100 marks on the term end examination only. तो दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका थ्योरी का कोर्स है मिट्टी की दुनिया, तो ये जो 100 नंबर का ये जो कोर्स होगा, इसमें आपकी सैद्धांतिक परीक्षा होगी, और ये जून और दिसंबर 2 बार हमारा एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। तो जो लोग अभी ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं वो दिसंबर में इसकी परीक्षा इसकी होगी, आपको देनी होगी, और इसके लिए आपको सितंबर के अंत तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर के जमा कर देना है, जो कि आपको जो सामग्री भेजी गई है उसके अंतर्गत पता दिया गया होगा कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन डिवीज़न में आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर करके जमा करना है, और ये 30 सितंबर तक भर के जमा कर देना ज़रूरी है, तभी आप दिसंबर माह की परीक्षा में बैठ पाएंगे। लेकिन अगर किसी कारण से आप इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते तो आप उसके बाद कभी भी परीक्षा दे सकते हैं। इसकी जो
अधिकतम अवधि है, मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 2 years एंड मिनिमम ड्यूरेशन इज 6 months. So you can appear any time within 2 years. So that is for theory course, and evaluation will be done completely on your performance in the examination, term end examination that we call. जो दूसरा आपका कोर्स है, दूसरा पाठ्यक्रम है, तो 2 प्रैक्टिकल के कोर्स हैं आपके. जैसा मैंने आपको बताया, स्टैटिक क्ले फॉर्म्स और डायनेमिक क्ले फॉर्म्स. तो इन दोनों कोर्सेज के लिए इवेल्युएशन का तरीका अलग होगा. इसमें ओके, प्लीज कॉल प्लीज. Yes, Dr. Vardhini. Good afternoon. Good afternoon. This is, I'm very happy to say that today we have with us 2 members from the KVIB of Assam. Dr. Nripendra Nath, who is the Development Officer of the Practical Training in the headquarters, and Mr. Prabhat Medi, who is the Zonal Inspector of Pottery. We have a center for pottery at Dharamtul in Marigong district, which is about 80 kilometers from Guwahati. So we are very much interested, to take up the program. As I understand from the members over here, the existing program has 20 students, and there have been 54 new applicants for the program. Now we are quite interested to launch the new program, and I think certain clarifications they would like to have. Can I hand over to them? Yeah, certainly. Hello. Hello. नमस्कार. It's not going or what? Hello. Yes, we are waiting for the questions. Hello. Yes, hello, Dr. Vardhini. Yes, we are waiting for the questions. ऐसा लगता है जैसे डिस्कनेक्ट हो गया. Anyway, we will continue our discussion, and we request that either you make another call, or you can send your question through fax, or maybe later on through email. So friends, we were discussing the evaluation scheme, in which I told you that for practical courses the evaluation system will be different. इसमें 2 तरह का demarcation होगा. One part will be your continuous evaluation, and another part will be your practical examination. So continuous evaluation, that you have to submit a report at the study center, and whatever you do at the study center in lab practical, so that will constitute your 30% of marking. So 30% marks out of 30% will be given by your internal examiner or the instructor at the study center at the time of practical examination, because you also have to produce your pots whatever you have made in the sessions. तो दोस्तों, आप को जो प्रायोगिक परीक्षा होगी उसमें आप जो कुछ भी बनाते हैं अपने सेशन के दौरान, उसके ऊपर 30% मार्क्स होगा. तो आप जो कुछ भी बनाते हैं उसे आप संभाल कर रखें, और जब प्रायोगिक परीक्षा जिसमें फाइनल परीक्षा होती है उस समय आपको वो एग्जिबिट करना है, आपको दिखाना है, और उसके ऊपर आपको 30% मार्किंग उसके आधार पर दी जाएगी. बाकी 70% मार्किंग जो आपकी प्रायोगिक परीक्षा होगी, जिस दिन भी प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, तो यू विल बी आस्क्ड टू मेक समथिंग whatever is there in the course, और उसके आधार पर आपका प्रैक्टिकल मार्क्स 70% में दिया जाएगा, और 30% कंटिन्यूअस इवेल्यूशन में. ये ओके, प्लीज. हेलो. हाँ, नमस्कार. Guwahati Regional Center. Yeah. Here, I'm very happy to tell you that we have 2 very important members of the KVIB here today. One, Mr. Nripendra Nath, who is the Development Officer, Practical Training of the headquarters, and Mr. Prabhat Medi, who is the Zonal Inspector of Pottery. They are here with us conducting some of the very important practicals in pottery at their unit at Dharamtul, which is situated about 80 kilometers from Guwahati. Yeah. We are interested to open up a study center here.
So that will be a very good step to establish a center at Dharampur, and we welcome both the KVIC officers Nripendra Nath and Prabhat ji. Yes, would you like to interact and ask questions, please? अच्छा सर, आप लोग ये पोर्ट्रेट के ऊपर टेराकोटा जो है, हाँ टेराकोटा आप लोग तो वहाँ पर सिखाता है ना? हाँ, टेराकोटा के ही ऊपर ये है कार्यक्रम। टेराकोटा हमारा वो धरमतुल में नहीं है। अच्छा, धरमतुल में नहीं है, लेकिन धरमतुल में आप लोग जो ट्रेनिंग देता है कमीशन ऑफिस में, ये कमीशन ऑफिस का ट्रेनर ज्यादा नहीं है, इसीलिए आप लोग जो प्रशिक्षण देता है, ये प्रशिक्षण हमारा भी ट्रेनर है वहाँ पर। आप लोग कुछ इसमें से मदद कीजिए हम लोग को मैं के बारे में। जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपकी जो भी समस्या है वो आप मेल करें, हमें हमारे ईमेल आईडी पे मेल करें, और ईमेल आईडी जो रीजनल डायरेक्टर है उनसे आप ले लें, तो आपकी समस्या से हम अच्छी तरह अवगत हो पाएंगे। मुझे ये पता चला आपके कहने से कि टेराकोटा आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है, इस कारण से उसकी ट्रेनिंग आप नहीं दे पा रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरह की मिट्टी उपलब्ध है वहाँ, जिस भी तरह की मिट्टी उपलब्ध है, स्टोन वेयर हो, टेराकोटा हो, ब्लैक कॉटन सॉइल हो, तो उससे क्या किसी तरह के कुंभकारी का सामान बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये जानकारी मिल सकती है आपके पास से? ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, आपसे मेल के जरिए हम लोग संपर्क करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इवोल्यूशन स्कीम बता रहा था। प्रैक्टिकल के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि 30% आपका इवोल्यूशन, आप जो कुछ भी बनाते हैं उसे आप संभाल के रखें, उसके ऊपर होगा। सारी चीज़ें आपको संभाल के नहीं रखनी है। जो 4-5 चीज़ें आपने अच्छी बनाई हैं उनको आप संभाल के रखें और परीक्षा के समय लेते आएँ, या अपने स्टडी सेंटर पर सुरक्षित रखें। और 70% इवोल्यूशन आपका वहाँ पर जो परीक्षा होगी वहाँ आपको करके दिखाना होगा, उसके ऊपर होगा। जो आखिरी कोर्स है, प्रोजेक्ट कोर्स है, वो बेसिकली उसको भी हम प्रैक्टिकल कोर्स ही कहते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट में आपका इवैल्यूएशन आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर होगा। तो आप डिज़ाइन के प्रैक्टिकल्स आप करें, एक एक्सरसाइज बुक आप ले लें, और उसमें जो भी प्रैक्टिकल है, जो भी चित्र आप बनाते हैं उनको आप बनाते जाएं, और उस प्रैक्टिकल बुक को संभाल के रखें, क्योंकि उसे फिर आपको प्रोजेक्ट के लिए सबमिट करना पड़ेगा अगेन इन SRED, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन डिवीज़न। उसका एड्रेस या आपके पास होगा जो मटेरियल भेजा गया है, अगर नहीं होगा तो हम लोग पत्र लिख के आपको बताएंगे। तो आप उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भेजेंगे। डिज़ाइन और मार्केटिंग दोनों के प्रोजेक्ट आपको, जो भी इनपुट आपको मार्केट से लेने हैं या फील्ड से लेने हैं, वो लेने के बाद आपको अपनी एनालिसिस और डिज़ाइन में आप जो कुछ भी करते हैं वो एक एक्सरसाइज बुक पे लिख करके आप उसे सबमिट करेंगे, और उसके ऊपर आपका इवैल्यूएशन होगा। तो उसकी जो पूरी मार्किंग है डिज़ाइन और मार्केटिंग प्रोजेक्ट के ऊपर होगी। आम तौर पर हमने देखा है कि कई लोगों को जानकारी के अभाव में परेशानी होती है, क्योंकि वो अपना रिपोर्ट या जो चीज़ें बनाते हैं या जो एक्सरसाइजेज उन्होंने डिज़ाइन के अंदर की हैं उनको संभाल कर नहीं रखते हैं, और बाद में कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी। ये लिखा हुआ भी है, और मैं आपको वैसे स्ट्रेस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ इस बात पे कि आप जो कुछ भी बनाते हैं डिज़ाइन में, मार्केटिंग में, जो भी इनपुट आप लेते हैं उसको आप एक एक्सरसाइज बुक में रिकॉर्ड करें। जो कैटलॉग आप डिज़ाइन करते हैं उनको रिकॉर्ड करें, उनको रखें, और जो चीज़ें आप बनाते हैं उनको रखें, क्योंकि परीक्षा के अंत में जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उसमें 30% मार्किंग आपके जो डायनेमिक क्ले फॉर्म और स्टैटिक क्ले फॉर्म है उसमें 30% मार्किंग आपके किए गए काम के आधार पर होगा, और 100% मार्किंग जो प्रोजेक्ट हैं डिज़ाइन और मार्केटिंग प्रोजेक्ट, उस कोर्स में आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसी के ऊपर आपकी मार्किंग होगी। तो ये इवैल्यूएशन स्कीम था जो मैंने आपको बताया। इसमें से कोई प्रश्न आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। हम लोग इस तरह के टेली काउंसलिंग सेशन अलग अलग विषयों पर आयोजित करेंगे, जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी।
टेली काउंसलिंग सेशन आप अटेंड कर सकते हैं, यहाँ स्टूडियो में आकर अटेंड कर सकते हैं, या हमारे रीजनल सेंटर्स हैं वहाँ इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वहाँ भी आप टेली काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर केबल कनेक्शन है और ज्ञान दर्शन उस पर उपलब्ध है, आप अपने केबल वाले को कहिए, तो उस पर भी आप टेली काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं और वहाँ से टेलीफोन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है उनसे मैं यही आग्रह करूँगा कि वो स्टडी सेंटर पे आएँ और रीजनल सेंटर पे आ जाएं, या हम जो दिल्ली में हैं वो स्टूडियो में आ जाएं और अपने प्रश्न पूछें। यस प्लीज। अगर मान लिया कि मेरे पास चाक नहीं है और पॉटरी बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास चाक नहीं है और आप पॉटरी की चीज़ें बनाना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजू शर्मा है सर। हाँ। और हम आर्टिस्ट हैं और चाक पे मेरे पास नहीं है जी। तो चाक का अगर हमें पॉटरी बनाना है उसके लिए क्या करना है? जी, मैंने बताया कि आपको जो लैब प्रैक्टिकल होगा उसमें चाक की सुविधा उपलब्ध रहेगी जहाँ भी आपका स्टडी सेंटर है, और साथ में आपको रॉ मटेरियल भी दिया जाएगा, जो मिट्टी भी उपलब्ध रहेगी और इंस्ट्रक्टर भी अवेलेबल होगा। तो आपको शुरू में कुछ भी नहीं चाहिए, आप स्टडी सेंटर पे आइए और वहाँ पर आपके यस प्लीज़, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन बाद में आपको अगर आगे काम कंटिन्यू करना है तो आपको एक चाक लेना चाहिए और करना चाहिए। जी। There's a call from Shillong. Hello. हाँ, नमस्कार। Yes, I'm speaking from Shillong. या My question is, who are the target group for this certificate program? Because in the Northeast, if we see that those people who are carrying out the career of art, craft and poetry are the illiterate. And so if they enroll in IGNOU programs, I'm sure they will not be in a position to get the certificate because they cannot clear the written part. So if that is the case, whether the university can give the certificate on the basis of oral and practical examinations or not. Thank you. Over. Yeah, your question is very relevant, and we have designed this program for rural artisans, and that's why the books which have been prepared, mostly sketches, illustrations and photographs have been used, so that even a neo-literate can understand the material. But it has not been restricted only to the rural artisans. It is open for all, even the interested youth, those who want to learn this art. For examination, for theory examination, mostly if you see the paper in earlier papers, we have asked to sketch the different methods and whatever they have learned in sketches. So we have done away with any language even, because recently in last session 20 artisans from tribal area in Gujarat, they took our course, and they had sent a request that the paper should be in Gujarati, because they cannot understand either Hindi or English. Our learning material is bilingual, it is presently in Hindi and English, but they could understand the material because sketches and photographs were amply given in the material, and we have designed question paper in such a fashion that we asked only the sketches and steps to be sketched, so that they don't have any problem of language. So that way we are stressing on understanding of the material, and anyway the theory course which can be done through the help of sketches, and others are only practical courses. So they are doing it very well. Even from Odisha, many artisans, they were from they wrote their answer script in the first session in Odia, and we got it evaluated by some Odia expert. So that facility in IGNOU we are providing, and I can assure that most of the questions will be asked on the basis of
sketches, so there won't be a problem to the neo-literates, and this is income generation program. So in Northeast, I think this will be very much helpful. If I may interrupt. Yeah. Thank you very much, and from what Dr. Ajit Kumar has just informed us, it will be a very relevant program for the Northeast, and it's a very flexible program. So whatever peculiar situations are there, that has already been taken care of, and if there's anything more that you would like to inform us, please feel free to write to me regarding these peculiar conditions, and we will be happy to incorporate this in the program. Maybe we may also consider sending a team to the state to find out what are those conditions and whether this can be incorporated into the proposal, into the program, so that this is brought for the benefit of the Northeast. Thank you. Can we hear from Agartala, Dr. Chakravarti, please? Yeah, any questions here? आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं. देखिए, पिछले सेशन में हम लोगों का अनुभव ये रहा कि फरीदाबाद में हमारा एक स्टडी सेंटर है, जहाँ की कुछ उड़ीसा के कारीगर थे, उन्होंने हमारा प्रोग्राम किया, और कुछ यहाँ के अर्बन लोग थे जो कार्यक्रम कर रहे थे. हमने देखा उनके बीच बड़ा अच्छा तालमेल था, क्योंकि जो कारीगर थे वो चाक के ऊपर काम करने में सिद्धहस्त थे, और उन्होंने जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनकी मदद की, उन्होंने उनको अच्छे से सिखाया, और जो किताबें थी जहाँ की कुछ उनको काउंसलिंग की ज़रूरत थी, वो काम हमारे जो पढ़े लिखे छात्र थे उन्होंने कारीगरों को समझा दिया कि आपको इसके अंतर्गत क्या करना है. तो अभी तक हमने ये देखा है कि जो रूरल आर्टिजन्स हैं, इवन दोज हु आर illiterates, they have passed our theory course with the help of sketches, and you can say that we have changed the language of instruction in theory course, a language of expression. It is through sketches only, mostly. Only one or two a mathematical question is there. There also we give option. So those questions may not be tried out by the by rural artisans who are not conversed with the subject, but certainly we want that हम ये चाहते हैं कि जो ग्रामीण कारीगर हैं अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको ये इनपुट देना ज़रूरी है कि वो जो किताब में चीज़ें लिखी गई हैं, खासकर इलस्ट्रेशंस के माध्यम से, उनको वो समझ सकें, उनकी बारीकियों को समझ सकें और उनका कुछ एक्सप्रेशन हो सके, ताकि आगे अगर वो डिप्लोमा प्रोग्राम में या उसके भी आगे वो जाना चाहते हैं, उनमें से कुछ लोग जो टैलेंटेड हैं, जो इंटेलिजेंट हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो उनके लिए वो लैंग्वेज बाधा ना बने, वो उसमें आगे सीख सकें. ये हमारा प्रयास है. और ये थ्योरी कोर्स इसीलिए रखा गया है, कृपया आप ये न समझें कि ये थ्योरी कोर्स इसलिए रखा गया है कि वो पास न कर सकें. दिस थ्योरी कोर्स हैज़ बीन डिजाइंड फॉर देयर बेनिफिट ओनली, फॉर रूरल आर्टिजन्स, सो दैट they can start learning theory also. They can start learning through the help of books and illustrations, and their reach may be expanded. So that is the idea for keeping this theory course, and it is not idea that they will not pass the theory course. If they go through the course, if they go through the books, I think they can express very well in their answer script, through, at least through sketches, and they start learning from there, because it will be required in further courses. You know, we have different levels of learning. In certificate course, certainly they if you learn the skill, it is well and good. In diploma course, you have to master these skills. So again the stress is on practical, so you have to master the skill in diploma course. But if you go beyond that, then you have to do the analysis part and design part quite a lot. So there you require mathematics also, computer also, reference books also. So you require all these things. So these inputs are necessary from the very beginning. That's why we have introduced at the certificate level also. Yeah, please. Yes, Dr. Ralu. In the dais. This is Kohima Regional Center.
I am sorry to inform you that we met some officials of the NKVIB here, and we have been informed that they do not have any centers engaged in these activities. We have also been informed that they are not aware of any other NGOs or other agencies involved in this activity. However, they will make inquiries and inform us again, if any. On our part, we will also continue to make inquiries and explore the possibilities of opening a study center in Nagaland, which we certainly feel that it will be of benefit to the people here. Thank you, over. Okay, thank you very much. At least you have tried to explore that if there is any possibility, and I think I hope that you will get some center, some NGO or somewhere in nearby. What are the places which you could identify as a study center besides an NGO or a... Yeah, if any potter is there who is making their pots, because for lab practicals we need a study center. The theory classes, that can be done even at the regional center or some other center also. But for lab practical we need... Yeah. Yes, please. बताइए. I think we are not able to hear. It is not audible here. Anyway, we will continue our discussion. So I will, जैसे we were resuming the talks on the appropriateness of this course for illiterate people. I think if we all were following the first session itself, I explained that this course is not only about checking your communication skill or checking your pottery skills. It's about overall all around development of the candidate who enrolls in this program. And secondly, it's bit disappointing actually, because the concern should not be towards having the certificate only, because to get the certificate we offer you enough time. You can complete this course in 6 months time or within 2 years of registration. So the ultimate achievement is not really about having the certificate, but possessing the skills which makes a potter successful. So if you are illiterate today, I'm sure you will not like to be like that after 10 years down the line. I'm sure. Yeah, please. Yes, we cannot hear your voice at the moment. I think it is not audible. If it's possible, and if you can fax the query to us, it would be... I will request that you can fax your question or query to us at the given number. देखिए, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का, तो जैसा अभिषेक जी ने भी बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके अंदर जो एक कलाकार है उसको जागृत करना, और वो कलाकार किस ऊंचाइयों तक पहुंचता है ये बहुत कुछ आप पर निर्भर करता है. साथ ही सिर्फ कला की बात इसमें नहीं है. आजकल कोई भी चीज़ है वो कॉमर्शियल हो गया है, तो एक व्यावसायिक पहलू भी उसका है. वैसे तो केवल अगर आर्ट की बात करें तो उसमें ये होगा कि उसमें हम मार्केट क्यों जाएं, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है, जो उत्कृष्ट लगती है, हम उसे करें. लेकिन आज के समाज में कला के साथ साथ व्यावसायिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है,
और उसको भी इस कार्यक्रम में अनदेखा नहीं किया गया है। अभी लर्नर्स के बीच में संजू शर्मा ने प्रश्न पूछा था। VLC installed, already installed VLC, but I am not getting. I am trying to get the same. आप कृपया अपना प्रश्न दोहराएं। कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? या फैक्स से अपना प्रश्न भेजें। तो मैं जैसा कि बता रहा था, हमारे बीच में लर्नर्स के बीच में संजू शर्मा बैठे हैं। मुझे मालूम है ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और इन्होंने एक राष्ट्रपति महोदय का बहुत ही बढ़िया एक इन्होंने रेजिन क्ले के ऊपर बना करके अपनी कलाकृति भी हमें भेंट की थी, जिसे राष्ट्रपति जी को भेंट किया गया इग्नू के माध्यम से। तो ऐसे कलाकार भी हमारे छात्र होते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग जिनकी हॉबी है और इसमें काम करना चाहते हैं, वो भी हमारे लर्नर होते हैं। और जो गांव के कारीगर हैं, रूरल आर्टिजन्स हैं, दोज हु आर illiterate or neo-literate, those are also our learners. Our primary, we have focused our program on the craft, and the pedagogy aspect has been taken for the target group of rural artisans. इसीलिए इसमें जो किताबें बनाई गई हैं, अगर सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए बनाना होता तो बहुत संक्षिप्त किताब हो सकती थी, और जो जिस तरह किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं उससे भी हो सकता था, वो पढ़ लेते। पर इसको काफ़ी सिंपल करके पेडागोगिकली काफ़ी सिंपल स्टेप्स में विथ इलस्ट्रेशंस इनको दिया गया है, ताकि ये कोई भी लैंग्वेज बायस इसमें कम से कम हो जाए। और जो Plus the text is supported by lot of visual images, lot of pictures and video films. Also we are preparing. We are the films are under preparation. Few films we have already produced, and that can be viewed at your study center or by the learners. So definitely illiteracy will not be a barrier in learning the program. Definitely not, because we'll have lot of radio counseling sessions, telecounseling sessions. We have audios and video programs, you know, as a backup with the books itself. Second, the program aims at developing in you, like it's like bringing the sense of familiarity towards text to the illiterate artist who is very good in his work but he cannot communicate. So communication skill, which is very important part of our program, it's about making you familiar to deal with the outside world. So in this way, I think this program will definitely benefit both the literate and illiterate in the same way, and will prepare them for the next stage for the diploma course, or in fact the next stage of their successful artistic enterprise in their own life. So any other question from the learners? Yes. आप कोई प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि इसमें जो स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे पर्टिकुलरली डिज़ाइन के लिए है, तो प्लीज़ यू गो थ्रू इट, इवन इफ इट मे लुक वेरी सिंपल, बट यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द स्टेप्स, बिकॉज इट विल ब्रिंग चेंज इन यू, in your attitude, in your learning, in your perception and in your expression. तो कई बार वो चीज़ें बहुत ही आसान लगती हैं, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि ये शीशे का ग्लास सामने रखा है और आप उसको पहले ऑब्जर्व करें। अगर उसमें लिखा है ऑब्जर्व करें, देन यू तब आप किसी एकांत जगह पे बैठ जाइए। और इसीलिए इसको होम प्रैक्टिकल के अंतर्गत रखा गया है कि जब आपको फुर्सत मिलती है, चाहे वो रात को 10 बजे मिले या कोई मॉर्निंग में 4 बजे उठता है, जब भी आप बिल्कुल शांत हो, शांति हो, डिस्टर्बेंस कम हो, उस समय पर आप अपने डिज़ाइन के प्रैक्टिकल करें। और उस समय आप विथ कंसंट्रेशन आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, फिर उसमें जो स्टेप्स दिए गए हैं उनको स्केच कीजिए। तो आप देखिएगा कि कैसे आपकी प्रतिभा निखरती है, एक कलाकार कैसे आपके अंदर
जगता चला जाता है और आप नई ऊंचाइयों को छूते चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपके प्रैक्टिकल में, इस आर्ट और क्राफ्ट के कोर्स में, कि एटीट्यूडनल चेंज जो है, जो आपके एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए, आपके परसेप्शन में चेंज आना चाहिए। एक आम आदमी के परसेप्शन में और एक कलाकार के परसेप्शन में अंतर होता है, तो वो चेंज हम आपके परसेप्शन में लाना चाहते हैं। और उस तरह से ये जो किताबें डिज़ाइन की गई हैं अपने फील्ड के बहुत ही एक्सपर्ट लोगों के द्वारा डिज़ाइन की गई है। काफ़ी वर्कशॉप और रिसर्च करके हम लोगों ने ये मटेरियल तैयार किया है। तो इसमें काफ़ी लोगों का इनपुट है, डिफरेंट फील्ड से जो लोग आए हैं उन्होंने अपने इनपुट दिए हैं डिफरेंट एंगल से, और उसको इनकॉर्पोरेट करके ये सामग्री तैयार की गई है। इसलिए इनका उद्देश्य आपको सिखाना है, आपका टेस्ट लेना या एग्जामिनेशन लेना बहुत उद्देश्य नहीं है। लेकिन चूंकि हर एक कार्यक्रम में जैसा कि होता है आपको एक सर्टिफिकेट देना है और एक परीक्षाएं होनी है, तो वो होंगी। मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाता हूं जो पिछले कोर्स में जो लर्नर्स ने सीखा है और उन्होंने कैसी कमाल की चीज़ें बनाई हैं वो मैं दिखाता हूं। इसमें से ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो लर्नर्स, ये बिल्कुल बिगिनर्स ने, अगर आप स्लाइड को देखिए तो ये जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ये किसी आर्टिस्ट या पहले से सीखे हुए आर्टिजन ने नहीं बनाया है। ये बिल्कुल जो बिगिनर्स थे, जो कुछ भी नहीं जानते थे ABCD क्राफ्ट का, और उन्होंने एग्जामिनेशन के अंदर ये चीज़ें बनाई हैं स्टडी सेंटर पर, वो एग्जिबिट किया गया है। जो हमारे एग्जामिनर थे उन्होंने इनकी तारीफ़ की और कहा कि जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में जैसे प्रोजेक्ट होते हैं उनसे भी अच्छी चीज़ें आपके स्टूडेंट्स ने बनाई हैं। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज दे ऑल हैड इंटरेस्ट इन द क्राफ्ट। ये देखिए, ये भी आपको कुछ नमूना है जो स्टूडेंट्स वहाँ स्टडी सेंटर पे बना रहे हैं एग्जामिनेशन के दौरान। तो ये देखिए, ये मतलब काफ़ी अच्छी और उम्दा चीज़ें लोग 6 महीने के अंदर सीख सकते हैं, जो डिप्लोमा क्या ग्रेजुएशन लेवल तक के लिए भी ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इन क्राफ्ट में, आपका इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जो स्टेप्स बताए गए हैं आप उनको फॉलो कीजिए, आप प्रैक्टिकल अटेंड कीजिए। आपके पास चाक या मिट्टी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको स्टडी सेंटर पे सीखने के लिए चाक उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि 34 या 36 सेशन हैं, तो उतने ही सेशन वहाँ पर अरेंज होंगे। उसके अंतर्गत आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। ये ज़्यादातर जो आपने अभी चित्र देखे वो उतने सेशन के अंदर ही लोगों ने सीखा है। लेकिन अगर आपको आगे इंटरेस्ट कंटिन्यू रखना है तो आपको कहीं एक व्यवस्था करनी पड़ेगी। या तो आपके आसपास कोई कुम्हार हो जिसका चाक हो, या आपके मित्र हो, 3-4 मित्र मिलके कर लें, या आप अपना एक चाक ले लें। और चाक भी कई तरह के होते हैं, हम लोग आगे के काउंसलिंग सेशन में उसकी जानकारी आपको देंगे। एक तो हैंड ड्रिवन व्हील होता है, जो कि हाथ से ट्रेडिशनल चाक जो होता है कुम्हार चलाते हैं, पर उसके साथ दिक्कत ये होती है कि वो आपको खड़े होकर और झुक करके उस पर बनाना पड़ता है। तो खासकर महिलाओं के लिए वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उसमें आपको बैक पेन या कमर में दर्द हो सकता है। तो उसकी जगह एक जो दूसरे तरह का चाक हम लोग रेकमेंड करते हैं, जो कि पैर से आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। उसमें नीचे उसका फ्लाई व्हील लगा होता है जिसको आप पैर से चला सकते हैं, किक व्हील उसको कहते हैं। तो किक व्हील ज़्यादा उचित होता है और उसमें आप स्पीड भी अपने अनुसार रेगुलेट कर सकते हैं। दिल्ली के अंतर्गत करीब 5-6 हज़ार का वो आता है किक व्हील, पर ट्रेडिशनल व्हील और सस्ता भी आ जाता है। जो दूसरे शहर हैं उसमें रेट अलग अलग होंगे इनके। इलेक्ट्रिक व्हील भी उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक व्हील में भी गियर लगा होता है, तो आप उसको डिफरेंट स्पीड पर रेगुलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। बिगिनर्स को शुरू में इलेक्ट्रिक व्हील में आसानी होती है, लेकिन हम लोग किक व्हील रिकमेंड इसलिए करते हैं कि आप शुरू से उसकी प्रैक्टिस कर लें तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है और उसमें एक्सीडेंट के भी चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कभी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा या सेफ्टी में कभी गड़बड़ हो जाए, तो उसके चांसेस कम होते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो किक व्हील बहुत अच्छा होता है। शुरू में कुछ थकान ज़्यादा होती है क्योंकि आपको पैर से उसको किक करना पड़ता है, बट इट इज़ वेरी कन्वीनियंट।
तो आप चाक पर पहले स्टडी सेंटर में सीख लें, और अगर आप सीख जाते हैं, आपको उसमें मज़ा आने लगता है, तो आई एम श्योर कि आप कोई ना कोई चाक लेंगे और उसके ऊपर आपको काम करके काफ़ी मज़ा आएगा. Before we conclude this session on induction, I would like to share some of the views or tips which I am sure we all know anyways, but it's just like a reminder. These views or tips would definitely are for more effective learning, and this is something which a student can do himself or herself. First of all, like whenever we learn any art, personal submission to that art is most important. That means basically that means of learning are not important, but the will to learning is more important. So it doesn't matter if the means are not available, but if you have a will, you can make out a way to learn that thing. And second important thing would be to be regular and be honest with yourself. If you are regular with all the practical sessions and you are honest during your home practicals, see, home practical is your personal test where you won't be in front of any instructor or any external force to induce learning in you. You yourself are the person who will induce the learning process in you. So if you don't skip your home practicals and you be more honest with them, definitely you will have more effective learning. And as the course is so nicely divided into 3 parts: theory, home practicals and lab practicals, and if you are regular in all these things, 6 months is big enough time for you to achieve the goals as underlined in the program. And second, and the last thing I would like to say is, it's a very good habit to keep a record of everything that you do, be it your theory notes or your lab practicals that you conduct in the study center, or even the questions that you ask during any telecounseling that you attend or radio counseling that you attend, and also the things that you learn while you do all your home practicals. Keep a record of each and everything. Don't think that the sketch or the scribble that you made is a waste. Even mistakes should be recorded because they become a part of your learning. अभिषेक जी ने आप इन सभी बातों का ध्यान रखें. मैं अब समाप्त करता हूँ. आखिरी रिमार्क्स उनका बिल्कुल सही था, क्योंकि कई बार इस तरह की कंप्लेन आती है कि स्टडी सेंटर पे इंस्ट्रक्टर हमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं. आप ये जान लें कि जितना टाइम आप खुद लगाएंगे आपका आर्ट और क्राफ्ट उतना सुधरेगा. इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ. मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, लर्नर्स, काउंसलर्स, टीचर्स, रीजनल डायरेक्टर और रीजनल सेंटर से आए हुए लोग, KVIC से जो भी ऑफिसर्स आए हैं हमारे रीजनल सेंटर पे और जिन्होंने ये कार्यक्रम अटेंड किया है, मैं उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह आपका सहयोग आगे के टेली काउंसलिंग सेशन में होता रहेगा. हम लोग मिलेंगे और उसकी सूचना आपको देंगे. एक और चीज जाने से पहले बताना चाहेंगे. Very special thank you to the regional directors of the Northeast. Thank you for joining in with your queries, comments, and I'm sure there's immense scope for starting program study centers for this very innovative program in pottery, craft and design. Language is not a barrier, as it has been told to you, and it is only to inculcate and kindle the creativity in a person. So for that there is immense scope, which is not region specific. And if there are any proposals that you would, which I'm sure there will be after this teleconferencing, please send it to NEP and we will forward it to the program director, and soon we will have the program study center started. Thank you very much. Namaskar.